کیا آپ نے راکھ کے بدھ کے روز روزہ رکھا تھا؟ کیوں رکھا تھا؟ کس لیے رکھا تھا؟ مقصد کیا تھا آپ کا؟ اور اگر آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ کیسے رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرا نام جوش فتاشر ہے، اور اگر آپ میرے پیج کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں ببلیکل باتوں پر یا روحانی باتوں پر تعلیم دیتا ہوں، اور آج ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں روزے کے بارے میں۔ تو روزہ ہوتا کیا ہے؟ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ ان تین پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور ان کو میں یوں بتانا چاہوں گا۔ روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اور روزے کا طریقہ کار کیا ہے۔ متی چھٹا باب اس کی 16ویں اور 18ویں آیت کے اندر بہت مشہور آیت، آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں: جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں اس چھٹے باب کی پہلی آیت دیکھنی پڑے گی۔ وہاں پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ روزہ ایک راست بازی کا کام ہے۔ اب راست بازی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ راست ہونا، خدا کے ساتھ درست ہونا۔ لہٰذا آپ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ درست ہونے کے لیے، راست ہونے کے لیے، خدا کے ساتھ اپنا کنیکشن درست کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے فاقہ کرنا، کھانے سے پرہیز کرنا یا کھانا نہ کھانا۔ اب یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فاقہ کرنا، کھانے سے پرہیز کرنا یا کھانا نہ کھانا۔ بہت ضروری بات یہ ہے کہ اس میں کیوں ہم کھانا نہیں کھاتے یا کیوں ہم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں؟ کیونکہ کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی جتنی بھی جسمانی ضروریات ہیں، جتنی بھی دنیاوی ہماری مصروفیات ہیں، ان سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف اپنا دھیان لگانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کھانا پینا چھوڑ کر، جو کہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں، ان کو بھی چھوڑ کر ہم خدا کی طرف دل لگاتے ہیں، اور خدا کو یہ بیان کرتے ہیں کہ خدایا، اس کھانے پینے کی بھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں تیری ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہے روزہ، یہ مطلب ہے روزہ رکھنے کا، کہ آپ دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہو، کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتے ہو، اپنی ضرورت نہیں پوری کرتے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہو کہ میرے جسم کو جتنی کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میری روح کو خدا کی ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ خدا کے پاس آنا، اور کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے پاس کیوں آ رہے ہو۔ غالباً آپ کے دل میں غم ہے، اس لیے آپ پاس آ رہے ہو، جیسے کہ حنا جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی اور اس کی سوت اسے بے طرح چھیڑتی تھی تو وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، فاقے کرتی تھی۔ پھر خدا نے اس کو سموئیل بخشا، غم کی حالت میں، خدا کی مرضی جاننے کی حالت میں۔ جیسے کہ دانیل، وہ خدا کی مرضی جاننا چاہتا تھا اور خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدا مجھے بتا کہ تو نے جو مجھے رویائیں یا نبوت جو تو نے دکھائی ہے اس کا مطلب بتا۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ خدا کی مرضی جاننا ہے، خدا کی مرضی تبدیل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ داؤد بادشاہ، دوسرا سموئیل اس کا 13واں باب، اس کی اولاد پیدا ہوئی، خدا نے بولا تو نے میرے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع بخشا ہے، اس لیے یہ اولاد جو تیری پیدا ہوئی ہے یہ ہلاک ہو جائے گی۔ داؤد نے روزے رکھے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ اب داؤد کے جو خادم تھے، داؤد بادشاہ کے جو خادم تھے، وہ کہتے تھے کہ بادشاہ پہلے نہیں کھاتا تھا، جب اس نے سنا تھا کہ لڑکا بیمار ہے، اب تو مر گیا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ داؤد کو پتہ چلا کہ لڑکا مر گیا تو الٹا اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس کے خادم پوچھنے لگے بادشاہ مالک، لڑکا جب بیمار تھا تب تو کھاتا نہیں تھا، اور جب مر گیا تو کھا رہا ہے۔ کہتے خدا کی مرضی۔ داؤد بادشاہ نے یہ جواب دیا کہ خدا کی مرضی ہے، اگر وہ بھی زندہ ہوتا اور میں فاقے کرتا شاید بچ جاتا، لیکن اب وہ نہیں بچا تو خدا کی مرضی ہے، میں خدا کا ہاتھ موڑ تھوڑی سکتا ہوں، وہ واپس نہیں آئے گا، میں ہی اس کے پاس جاؤں گا۔
लिहाजा आप रोजे किस लिए रखते हो? खुदा की मर्जी मोड़ने के लिए कि खुदा की मर्जी सुनने के लिए? क्योंकि कभी कभार खुदा की मर्जी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, फिर आप क्या करते हो? यहाँ पर हाँ, इंसान हमारी मर्जी के मुताबिक काम ना करे तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, उससे तंग आ जाते हैं। खुदा आपकी मर्जी ना करे तो फिर क्या आप करेंगे? उसे कबूल करें, क्योंकि खुदा की मर्जी हमेशा भली होती है। इसके अलावा खुदा से मदद मांगने के लिए, मिसाल के तौर पे यहोशू बादशाह दूसरा तवारीख उसका 20 बाब के अंदर जब उसके खिलाफ 3 बादशाह लड़ने को आ रहे होते तो खुदा के हजूर दरख्वास्त रखता है और खुदा उसे बचाता भी है। बहुत जबरदस्त डिलीवरेंस है। फिर रोजा रखा जाता है अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, जैसे कि यूना की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 से 10 आयत में है। फिर रोजा रखा जाता है दूसरों के लिए, और बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बोला है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, तो अपने दुश्मनों के लिए भी रोजा रखो। और ये हमें मिलता है ज़बूर 35:13। उसके अंदर ज़बूर नबीस फरमाता है कि वो तो मेरे साथ बुराई करते रहे, लेकिन मैंने उल्टा उनके लिए शिफायत की और उनके लिए रोजा रखा। तो आप किस मकसद के लिए रोजा रखते हैं? आ गया तो रख लिया, ये कोई वजह नहीं है। वजह और भी बहुत सारी है, हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि हर वीडियो 10 मिनट से कम की हो। सो लिहाजा 6 मिनट 23 सेकंड हो चुके हैं मुझे बोलते हुए, तो यही कुछ वजूहत है। अगर आप और ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और रोज़े का तरीक़ाकार, रोज़े का तरीक़ाकार ये है कि इंसानों के सामने नज़र ना आए, ऐसा तरीक़ाकार हो कि सिर्फ हमारे आसमानी बाप यानी खुदा को नज़र आए। और बाइबल मुक़द्दस में इसकी कोई टाइमिंग मुकर्रर नहीं है। योम कफ़ारा के दिन रोज़ा रखा जाता था, तो वह शाम से लेकर शाम तक रखा जाता था, इसलिए लोग 24 घंटे का रोज़ा रख लेते हैं। लेकिन फिर हम आस्तर और मर्तकी का रोज़ा देखते हैं, जो कि आस्तर 4थे बाब के अंदर है। वहां पर आस्तर और मर्तकी पूरे 3 दिन का एक रोज़ा रखते हैं, यानी कि 72 घंटे का। तो 24 घंटे का भी रोज़ा हो सकता है, 72 घंटे का भी हो सकता है। दानियल नबी ने 21 दिन का रोज़ा रखा था, यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया था, मूसा ने 80 दिन का रोज़ा रखा था। जी, बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता, लेकिन खुरूज 34 बाब में हमें वाक़या मिलता है कि जब वो 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहकर वापस आया, तो बनी इस्राएल कौम सोने का बछड़ा बनाकर उसको पूज रही थी। तो मूसा ने क्या किया, वो जो पत्थर की 2 लोहे थी जिसपे खुदा की उंगली से लिखा हुआ था, वो उसने के सोने के बछड़े पर मारी, जमीन फट, सोने का बछड़ा अंदर गया, बहुत सारे लोग साथ में मर मिटे, पत्थर की वो लोहे टूट गई और जमीन बंद हो गई। तो मूसा दोबारा से फिर ऊपर गया था, और इसको पूरा वाक्य कंसाइज करके आपको इस्तिस्ना की किताब उसका 9 बाब उसकी 9 से 18 आयत के अंदर मिलता है कि मूसा 2 दफा आया था। पहली दफा वो आया 40 दिन 40 रात के रोजे के बाद, नीचे आया, उसने देखा पूरी कौम बिगड़ी हुई है, फिर उनकी शिफायत करने के लिए दोबारा से वो 40 दिन 40 रात ऊपर गया था। अगर उस एक दिन को भी काउंट करें जिसके अंदर उसने पत्थर मारे और लोगों को बुलाया और शिफायत की, उसके बाद गया, तो 81 दिन बन जाते हैं। सो हमारे पास कितने दिनों तक या कितनी देर का रोजा रखना है, ये हम पर डिपेंडेंट है। बाइबल मुकद्दस में तो लोगों ने फिर बड़ी बड़ी देर का रोजा रखा है। डिपेंड करता है शख्स किस तरह का है, हालात किस तरह का है, मौका किस तरह से है। लेंट सीजन हमें बाइबल में नहीं मिलता, जो सीधी बात है, लेकिन एक रिवायत है, हम इसको ऑनर कर रहे हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर कोई लेंट सीजन में रोजा नहीं रखता तो वो रखने वाले को जज ना करे, और अगर कोई लेंट सीजन में रोजा रख रहा है तो वो ना रखने वाले को जज ना करे। हम में से हर कोई अपनी रास्तबाजी अपने तरीके से प्रैक्टिस करता है, इस बात पे आप एक दूसरे को लान तान नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई शख्स गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारता है और गुनाह कर रहा है, उस पर आप बोले, वो समथिंग एल्स है। कोई बंदा चोरी चकारी करता रहता है, कोई बंदा झूठ बोलता रहता है, कोई बंदा बेईमानी करता रहता है, इस पे आप जरूर बोले, इस पे जजमेंट जरूरी है। लेकिन हर बंदा खुदा के साथ अपनी रास्तबाजी किस तरह से प्रैक्टिस करता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट ये उसका खुदा का मैटर है, उसका और लोगों का नहीं। इसलिए लोगों के सामने नहीं होना चाहिए, खुदा के सामने होना चाहिए। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें 3 तरह के रोजे मिलते हैं। एक हमें मिलता है पार्शियल फास्ट, जो कि आधा फास्ट है। इसमें हम दानियल 10:3 के अंदर देखते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर पढ़े। दानियल 10 बाब उसकी 3 है। दानियल उसमें लजीज खाने नहीं खाता, कोई भी मैं या मशरूब नहीं पीता, और कोई भी गोश्त नहीं खाता, वो सिर्फ साग पात और पानी पीता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक दानियल की उम्र गालिबन 90 बरस की हो चुकी थी, तो वो बहुत बुजुर्ग था। बुजुर्ग में इतनी ताकत थोड़ी होती है कि वो पूरा रोजा रख सके। तो बुजुर्गी की हालत में दानियल ने इस तरह का रोजा रखा था, और उसने रखा था फिर ये 21 दिन का।
लेकिन फिर हमें पता चलता है फुल पूरा रोजा, जिसमें खाने से फाका किया जाता है, पानी पी लिया जाता है लेकिन खाने से फाका किया जाता है। इस तरह का भी हम रोजा रख सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ लिक्विड पे गुजारा कर रहे हैं, सॉलिड फूड नहीं ले रहे। फिर आखिरी और तीसरा, और जो ज्यादातर हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, वो है एब्सोल्यूट फास्ट, जिसमें ना खाना खाया जाता है ना पानी पिया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी बीमारी की वजह से या मेडिकल कंडीशंस की वजह से किसी शख्स को पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है, या कोई शख्स पूरी तरह से अपनी डाइट नहीं रोक सकता, जैसे कि डायबिटिक हो गया, कोई ऐसा शख्स जिसको 3 टाइम खाने के साथ मेडिसिन लेनी है, वो डेवर, तो वो क्या करे, अपनी डाइट आधी कर दे। और जो हेल्दी है, मैं इनकरेज करूंगा कि वो एब्सोल्यूट फास्ट रखे। बट रोजे 3 तरह के होते हैं, वक्त आपके ऊपर है। आप 12 घंटे का रखना चाहते हैं, वेल अगर आप रोजा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे मैं आपको बोलूंगा कम से कम 12 घंटे का रखें। लेकिन अगर 12 घंटे का नहीं रख सकते तो इट्स ओके, 10 घंटे का रख लें, 8 घंटे का रख लें। लेकिन जब तक आप रोजा रख रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपने अपने आप को खुदा के लिए डिवोट किया हुआ है, और किसी चीज के लिए डिवोट ना करें अपने आप को। दुआ में वक्त गुजारे, कलाम पढ़े, सो ना जाए, सोना अच्छी बात नहीं है। रोजा रख के आप सो गए, वो जिस्म की चीज पूरी करना है, जिस्म की जरूरत पूरी करना है। रोजा आपने किस लिए रखा है? ताकि आप जिस्म की जरूरत पूरी ना करो। लिहाजा इन तीनों बातों पर आप गौर करें कि रोजे का मतलब आपके लिए क्या है। वाकई में आप खुदा के करीब जाना चाहते हो कि ये सिर्फ रस्म है, दूसरे रखने तो चलो देखा देखी में मैंने भी रख लिया। मकसद क्या है इसका? आपके दिल में कोई गम है, आपके दिल में कोई दरख्वास्त है, आपको किसी चीज की जरूरत है, आपने खुदा से मदद लेनी है, क्या करना है आपने, और रोजे का तरीकेकार क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोजे का मतलब और रोजे का मकसद चेंज नहीं हो सकता, रोजे का तरीकेकार चेंज हो सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर पूछें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर शेयर करें, और अगर कोई भी सवाल है वॉट एवर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जरूर मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि ऐसी भी वीडियो बनाता रहूं, और आप जरूर सजेशंस दीजिएगा। खुदा यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबकी सलामती होती रहे, आमीन।